I'm welcome to all budding entrepreneurs. I call, is it visible? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So I'm just inviting Yes, sir. everybody, those who have joined this course, I'm calling them as a budding entrepreneur because they are going to be a future entrepreneurs in coming year and going to be a part of this Atmanirbhar Bharat. So I welcome all the budding entrepreneurs and also functional faculty. Why I'm talking about the functional faculty? Because the faculty who is going to be trained under this program, they have to be functional. Yes, they are not going to start their own venture, but even then they have to be functional. And once you are functional, you can take any task to complete it. We have our Sachinder Garg, so I welcome all dignitaries and also participants, Professor VK, Mr. VK Arora. So your definition of a startup has been given by the Government of India under a Startup India scheme, which was launched in 2016. And they have made a mandatory that you see, earlier we are talking about the micro, small and medium enterprise. Now, the Government of India is talking about the startup also, and that is a buzzword right now. So under buzzwords, we have to understand what is startup. Under startups, you see the basic norms has been built by the Ministry of DIPP, that is called Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India. They have laid down this scheme that any company which has been registered and is old about 7 years, they comes under the purview of what you call startup. And second, their turnover for the one financial year should not exceed for 25 years, not more than 25 years. And that is very important. In the case of biotechnology, this 7 year has been removed and it is now 10 years. The date of incorporation should not be more than 10 years. And the three area they have identified. The purpose of giving this startup scheme and giving these norms by the Government of India is about the entity, because every unit, every aspect is required the entity. So they have given a three entity. One entity is known as a private limited company, as defined by the Company Act 2013, or as a registered partnership firm registered at society registration under section 59 of the Partnership Act 1932, or a LLP. This new initiative has been taken by government, that is a LLP. Previously, people were talking about only for the private limited company, and second they were talking about the partnership bit. Now government has introduced the LLP also, it is a limited liability partnership. And again, the turnover is defined as per the company. It is also very important. If anybody or any startups, they want to take any advantage or a privilege under any schemes by the Government of India or by the government, state government or various other agencies, they have to understand the process of definition of startups, as well as what the innovation works is taking place. Like an entity is considered to be working towards innovation. It's a very important innovation. What I am focusing here, innovation means when you are giving any solution to any problem is called innovation. This innovation can be technological, this innovation can be by cost, this innovation can be design, this can be anything. Suppose any product is existing and you are coming out with a new innovation and adding some value and reducing the cost of the product, yeah, you are going to be rated as an innovator. And also development and deployment of your products and commercialization of new products, process or services which basically driven by the technology or intellectual property right is also be aimed under this projects in fact. And also very important, provided that the mere act of developing product or services or a process which do not have any potential for commercialization doesn't comes under this purview. Undifferentiated products or services or a process, or a products or a services or a process with no or a limited incremental value. So you see, in the case of any projects, light has been gone, sir. Sorry, but I will continue. Am I loud enough? Yes, sir. Yes. Please. And second, you see, Yes, sir. that is very important that if any startup is not coming out with this parameter, they are not going to get any privilege, any advantage under the government scheme. Why I'm saying, because under the initiative, if any startup has been registered a day only, he's born a day before, he is going to get a lot of benefits and privileges. Like he or she may go for the filing any what you call bidding for the any products. He or she may avail the opportunity for income tax rebate. He or she may also avail the exemption of service tax. He or she may also avail many other facilities has been laid down by the government. So it is very important that we have to understand the definition also. And this is a basic about this whole understanding about the incubation, what we would call the innovation.
as well as for understanding the various features of startup. Like one already I told about this LLP, one is for ROC, that is called private limited company, and third is for partnership deed. So now remaining session is going to be covered by my colleague, my friend, Mr. Sachinder Garg, and he will be taking about what are the types of entities and their formation process, which is very important, and you have to understand. And it has been very well elaborated also. So I'm inviting Mr. Sachinder Garg to continue this session, and you may continue, sir, after 5 also, because our objective is to clarify each and everything to our young budding entrepreneurs. Thanks a lot to Rahul, and thanks a lot to VK Arora sir. Now I'm inviting Sachinder Garg. Please start, sir. Thank you, sir. Thank you. I will be sharing this PPT from here. Yes, sir. Sure. Thank you, sir, for inviting me. इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू राहुल फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड देयर फॉर्मेशन प्रोसेस. और राहुल जी, क्या मैं हिंदी में और इंग्लिश मिक्स करके बात कर सकते हैं? श्योर सर, श्योर. हाँ जी. तो जैसा कि सर ने मुझे बताया, सर ने ही अभी बताया कि कोई भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले एक एंटिटी की रिक्वायरमेंट है. वो एंटिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फॉर्म में भी हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म की फॉर्म में हो सकती है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में हो सकती है. सर, अगर ये शेयर कैसे होगा, मतलब आगे कैसे? मैं बना रहा हूं. ओके. सो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरी पीपीटीज हैं ये इटसेल्फ बहुत एक्सप्लेनेटरी पीपीटीज हैं. आप सभी इस पीपीटी को फॉलो करें. मैं पढ़ता रहूंगा और समझाता भी रहूंगा साथ साथ आपको कि किस फॉर्म में किस तरह से जो एंटिटी फॉर्म होती है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ क्या एडवांटेजेस आती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. So while starting up a business, an important question that comes to everyone minds, जैसे सर ने बताया कि हमें बिजनेस करना कैसे है. So बिजनेस को फॉर्म करने के लिए 4 तरह के उसके रूप होते हैं. पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ये चॉइस आप लोगों के अपने ऊपर होती है कि हमें किस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करके काम करना है. नेक्स्ट स्लाइड. ये हमारे बेसिक, आप चाहे पिक्चरों से भी आप देख सकते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, एक आदमी अपने कंधे पर पूरी तरह से बोझ लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी सोल प्रोप्राइटरशिप की, और वो बोझ तले दबा हुआ है. सेकंड है पार्टनरशिप की, 2 लोग और 2 से ज्यादा लोग हाथ मिलाकर काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा पार्टनरशिप की तरह होता है. एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से प्रॉपर्ली गवर्न होती है. आप देख भी रहे होंगे फोटो में एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में डायरेक्टर्स या उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. लास्ट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो टाई लगाकर पार्टनरशिप वाली बात हो गई. ये पढ़े लिखे लोग. एक होती है पार्टनरशिप जो नॉर्मल एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है हमारे को. फोर्थ कैटेगरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इसमें थोड़ा सा जो चीजें हैं वो चेंज हो गई हैं. इसमें कंपनीज एक्ट 2013 जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसने अपने इंटरफेरेंस करा. उसने समझा कि कंपनी को फॉर्म करने में या कंपनी को चलाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती थी बच्चों को, जो नए नए स्टार्टअप शुरू होते थे. तो वो ध्यान में रखते हुए 2008 में और 9 में 2008-9 में करीब फाइनेंशियल ईयर 8-9 में ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आज से 10 साल पहले की बात है, कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कांसेप्ट लाया गया. सो नेक्स्ट हम एक एक करके इसको लेंगे कि जो चारों तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किस किस तरह से फॉर्म होता है. देखिए, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का है, इसमें लिखा है कि बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. अब कैसे कि आपने कोई जैसे मोबाइल है, आपने मोबाइल बेचने के लिए दुकान खोली, सोल प्रोप्राइटरशिप में खोली, तो इस मोबाइल को बेचने के लिए आप परचेज भी कर रहे हो मार्केट से, आप सेल भी कर रहे हो, आप तमाम तरह की फोन कॉल्स भी उठा रहे हो. तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या फॉर्म होती है? सिंगल प्रोप्राइटरशिप. सो प्रोप्राइटरशिप मींस होता है पर्सन, सिंगल पर्सन ओन. जो भी संस्था ओपन होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहलाई जाती है.
लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्टअप्स में कहीं भी जगह नहीं दी गई है। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये इनके मेरिट्स होती हैं कि आप जो भी कमाएंगे वो अपने लिए कमाएंगे। फर्स्ट है इजी एंड इनएक्सपेंसिव टू क्रिएट, बहुत इसमें कोई खर्चा नहीं है। आपका पैन कार्ड होता ही है, आपका आधार कार्ड होता है इंडिविजुअल का, जैसे मैं सचिंदर हूँ तो मेरा अपना पैन नंबर और मेरा अपना आधार नंबर से मैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप की जो दुकान है, जो ऑफिस है, ये मैं खोल सकता हूँ बिना किसी बहुत बड़े खर्चे किए। ओनर मेक्स ऑल बिजनेस डिसीजंस एंड हैज कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। खुद डिसीजन लेना है, स्वयं का डिसीजन है, स्वयं का कंट्रोल है और स्वयं ही बिजनेस चलाना है। सर ये बीच में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूलिंग टू मीट ओनर्स नीड्स, फ्लेक्सिबल रहता है। ओनर रिसीव्स ऑल प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंगल, स्वयं कमाना स्वयं खाना, प्राइवेसी रहती है, किसी पार्टनर से कोई बातचीत नहीं होती है। डीमेरिट्स इसके ये हैं कि इसकी जो लाइबिलिटी, डीमेरिट्स पे ये है कि इसका जो लाइबिलिटी है या जो परेशानी है वो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। कैपिटल आपको लाना पड़ेगा। सपोज करो आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो कैपिटल लाने वाले 2 या 2 से अधिक लोग भी हो सकते हैं। सर ये नेक्स्ट करते हैं इसको, सोल प्रोप्राइटरशिप को। नेक्स्ट स्लाइड। ऑप्शन है, जैसे ये देखो फल्स बेच रहा है, या कोई बार्बर है, नाई की दुकान है, या कोई एक ये कोई भी कियोस्क लगा के वो सामान बेच रहा है, तो ये एक काइंड ऑफ एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आते हैं हम पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप जो है वो स्टार्टअप्स में इनबिल्ट, मतलब स्टार्टअप्स को चलाने के लिए हम पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं, ये अलाउड है। A form of business ownership in which 2 or more people share the assets, liabilities and profits. पार्टनरशिप फर्म वो फर्म होती है जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज को या प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, या पार्टनरशिप डीड बोला जाता है इसको। उस एग्रीमेंट में हमें कितनी हमारी कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा हमें इन्वॉल्व करना है, क्या हम प्रॉफिट है। सपोज करो सर 2 लोग हैं, अब एक ने लगाए 1 लाख रुपए, एक ने लगाए 50,000 रुपए। उसके बाद डिसाइड होता है कि मैं प्रॉफिट का 70% मैं रखूंगा या 30% मैं रखूंगा। तो ये सभी चीजें एक एग्रीमेंट होता है, स्टैम्प पेपर खरीदा जाता है इसके लिए। स्टैम्प पेपर को खरीद कर एक हम पार्टनरशिप डीड फॉर्म करते हैं। उसमें आपको किसी एक लीगल एडवाइजर की हेल्प लेनी पड़ती है। उसमें एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को साइन करना पड़ता है। उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक रजिस्ट्रार होता है, वहां पर आपको जाकर रजिस्टर्ड कराना होता है पार्टनर्स को जाकर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ जी। अब इसकी जो मेरिट्स हैं, विशेषताएं क्या हैं कि फेयरली इजी एंड इनएक्सपेंसिव है। इसमें सिंपल सा क्या है कि आपको एक स्टैम्प पेपर खरीदना है, 800 रुपए के स्टैम्प पेपर आते हैं, उसमें ये एग्रीमेंट फॉर्म होता है और 1001 रुपए का खर्चा आता है, 1200 रुपए का खर्चा। और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जैसे यूपी का जो है, सॉरी गाजियाबाद का जो है, अभी मेरठ रजिस्टर्ड होते हैं। मेरे ख्याल से लखनऊ भी इसका एक ऑफिस है। कंबाइंड रिसोर्सेज होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि सिंगल ओनर था, सिंगल आदमी अपनी कैपिटल ला रहा था और काम कर रहा था। यहाँ पर हम 2 लोग हैं और 2 से ज्यादा है, तो हमारे जो टीम है, हमारी टीम विद पार्टनर्स है, वो उनके कैपिटल हम ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम 2 लोगों का स्किल का मीन्स ये हो गया कि आप एक में निपुणता है, आपकी दूसरे में निपुणता है, तो दोनों की स्किल को कंबाइन करके हम ये काम कर सकते हैं। 2 लोगों का एक्सपीरियंस हम इसमें पार्टनरशिप फर्म में हम इसको चला सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो भी दोनों की रहती हैं। एक ने सेल देख ली, एक ने मार्केट देख ली, एक ने बैंकिंग का काम देख लिया, एक ने फंड मैनेजिंग कर ली, एक ने सेल देख ली, एक परचेज देख रहा है, एक मार्केटिंग देख रहा है, एक लेबर को देख रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म में कुछ चीजें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ आप पार्टनरशिप को चला सकते हैं। Lenders may be more willing to lend and extend
क्रेडिट लेंडर्स होते हैं जिससे आप पैसा लेते हैं, वो ज्यादा विलिंग होता है कि हाँ ठीक है सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप में फर्क ये है कि वो अकेला है और यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग हैं। रिड्यूस्ड कंपटीशन एंड एक्सपेंसेस, बिजनेस लॉसेस होते हैं वो दोनों पार्टनर्स के शेयर हो जाते हैं, और जो कंबाइनिंग लाइक बिजनेसेस विल डिक्रीज और एलिमिनेट कंपटीशन भी इसमें हमारा कम रहता है क्योंकि हम लोग ज्यादा स्किल से, ज्यादा निपुणता से हम काम कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, यस सर, इससे पहले, यस। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, unlimited liability, each owner in a general partnership has an unlimited liability, each partner can lose personal assets to pay business debt। अब देखते हैं सर क्या है ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपने एक पार्टनरशिप फर्म खोली, आपने 1 लाख रुपए लगाया, बी ने 1 लाख रुपए लगाया, हमने 2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा, हमारे को बिजनेस चल रहा है लेकिन थोड़े दिन बाद वो लॉसेस हो गए। सपोज करिए सर अभी ये कोविड-19 आ गया था, तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि काम ना रहते हुए उनको बहुत बड़े लॉसेस हो गए। तो इसमें ये लिखा है कि सपोज आपने कोई बैंक से आपने 1 लाख लगाया, बी ने 2 लाख रुपए लगाया और बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले रखा था, हमारा 12 लाख रुपए मार्केट में लगा हुआ था। अब कोविड आ गया या कोई भी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां पर बिजनेस को लॉस हो गया, तो हमारी 12 लाख का लॉस हो गया, 12 लाख को हम कहां से लाएंगे? तो इसमें यह है कि जो पार्टनर है उनके पर्सनल एसेट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। लिमिटेड कैपिटल है और डिफिकल्टी इन एंडिंग मींस आपको विड्रॉ करते टाइम पार्टनरशिप को फिर से एक एग्रीमेंट साइन होगा। जब सपोज करो कोई इसमें एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ए और बी 2 पार्टनर हैं, सपोज किसी वजह से बी की डेथ हो जाती है, तो इस केस में फिर से वही प्रॉब्लम आएंगी जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रॉब्लम आती थी कि आप अकेले रह जाओगे और जो उसके एसेट्स लायबिलिटीज है फर्म के, उनको बेचने में या उनको काम करने में बेशक बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। ये हमारी थी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। ये एक इजी गोइंग वे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कहीं पे भी रजिस्टर्ड एज सच मिनिस्ट्री से गवर्न नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप तो सिंपल एक पैन कार्ड और आधार कार्ड से ओपन हो जाता है। पार्टनरशिप एक्ट में जो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वहां पे जाके हमें पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर कराना पड़ता है। अब क्योंकि चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं, माहौल बहुत चेंज हो चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि एक मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्था है, उसमें एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का रजिस्ट्रेशन मान्य है। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, अगर आप बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं, अगर आप वेंचर कैपिटल के लिए जाते हैं, एंजल फंडिंग के लिए जाते हैं, तो वो एलएलपी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। A limited liability partnership, popularly known as LLP, has came into being by passing the LLP Act 2008 and the notification of LLP Rules 2009। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था 2008-9 में ये LLP Act आया था और LLP की फॉर्मेशन हुई थी। सेकंड पॉइंट, it combines the advantage of both the company and the partnership। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनीज एक्ट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये देखा कि पार्टनरशिप के कुछ फायदे और कंपनी से कुछ फायदे उठा लेते हैं और एक एक्ट बना देते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट, और उसमें हम एलएलपी को रजिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म दैट इनेबल्स professional knowledge and entrepreneurial skill to combine, organize and operate in an innovative and proficient manner। सर ने भी आपको बताया था
कि एक इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसको इनोवेटिव, सर ने स्टार्टअप्स के लिए बताया इनोवेटिव अप्रोच लेनी होती है, तो एलएलपी में बहुत इजीली वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म विद द अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराने में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, यहां पर ऑल्टरनेटिव है, मींस हम लिमिटेड लायबिलिटी के साथ यहां अपनी पार्टनरशिप फर्म को बना सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड था। यहां पर नाम ही देखिए आप, लिमिटेड लायबिलिटी। आपकी जो लायबिलिटी है और एलएलपी की जो लायबिलिटीज हैं वहां पर आप लिमिटेड हैं, आपके कोई भी पर्सनल एसेट्स को अटैच नहीं होगा, जो कि पार्टनरशिप में नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट ये है, by incorporating an LLP its members can avail the benefit of limited liability, ये मैंने आपको बता दिया, avail the benefit of limited liability and the flexibility of organizing their internal management on the basis of a mutually arrived agreement as in the case in the partnership firm। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में एक एग्रीमेंट बना था, सेम यहाँ पर एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है और बहुत फ्लेक्सिबल नेचर का ये एग्रीमेंट होता है, जहां पर आप दो लोग आपस में विचार कर उस एग्रीमेंट को फॉर्म कर सकते हैं कि उसकी जो नेचर ऑफ ड्यूटीज है, जो शेयरिंग है, वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट। सर मुझे नेक्स्ट स्लाइड दिख नहीं रही इसमें, आपने चेंज कर दिया सर? सर मैं बोलता हूँ उन्हें कॉल करके। मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई एक्चुअली, इसलिए मेरे को दिख नहीं रही। हाँ जी सर, राहुल नेक्स्ट आपको दिख स्लाइड रही कर है? दीजिए। सर मैं राहुल उनको आप, कॉल कर रहा हूँ। राहुल आपको दिख रही है? नहीं नहीं सर, आप आ रहे हैं लेकिन अभी स्लाइड चेंज कर रहे हैं वो सर। उनके डेस्कटॉप में सर शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी कितने पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास? सर 52 इंक्लूडिंग अस 52। ऑल। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं सभी पार्टिसिपेंट से फिर से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप समझते रहिए, आप अपनी प्रॉब्लम को लिखते रहिए। अभी मेरे ख्याल से 5:35 हुए हैं। इसको मैं खत्म करके आपकी जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम रहेंगी, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, हम लोग आराम से इसको ले लेंगे। मैं अगली स्लाइड पे चढ़ता हूँ कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं वो कॉर्पोरेट मींस एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से ही गवर्न होते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन इन्होंने निकाला हुआ है। आप किसी भी स्टार्टअप को अगर एलएलपी में फॉर्म कर देते हैं तो इससे बढ़िया कोई भी अभी तक ऑप्शन नहीं आया हुआ है। इसको बनाने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब जो वो 2 लोग होंगे, ए और बी। जैसे मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मोनिका और तानिया जुड़ी हुई हैं। सपोज मोनिका और तानिया मिलकर एक एलएलपी फॉर्म करती हैं, एमटी एग्रो फूड्स एलएलपी। सपोज कोई एग्रीकल्चर का काम करने वाली है मोनिका और तानिया, अब इन्होंने क्या बनाया, एमटी एग्रो फूड्स एलएलपी इन्होंने फॉर्म करनी है। अब फॉर्म करने के लिए वो सपोज करिए सर मेरे पास आती है कि सर मेरे को एक एमटी एग्रो फूड्स एलएलपी फॉर्म करना है, तो मैं उनको बताऊंगा कि उनको फॉर्म करने के लिए सबसे पहले मोनिका और तानिया आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर चाहिए। आपने एक फोटो चाहिए देनी है, आधार देना है और पैन कार्ड देना है। आपने वो दे दिया। उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे पैन है ऐसे डिन है, DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम उनको वो नंबर दिला देंगे। वो कौन देगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही देगा। सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ही गवर्न होंगी। उसके बाद आज मैंने बोला एमटी एग्रो फूड्स एलएलपी। सपोज करो मोनिका का मन तो कुछ और कर रहा है, उसका कहता है कि नहीं सर मेरे को ये नाम रखना, मुझे ये नाम रखना है।
आप हमें 5 या 6 नाम बताएंगे, हम उन 5-6 नाम में से जो भी बेस्ट होगा वो हम रिक्वेस्ट डालेंगे मिनिस्ट्री को और वो नाम आपको अलॉट कर देंगे। जैसे सर कहते हैं ना, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का नामकरण करना पड़ता है, नामकरण करने के लिए पंडित जी को बुलाना पड़ता है। सेम वे माता पिता बताते हैं कि फिर वो कहता है कि पंडित जी कहते हैं आपे निकला, बापे निकला, सापे निकला, हम फिर उसमें से चॉइस करते हैं, बाकी 4 नाम उठा लेते हैं और हम चॉइस कर लेते हैं। सेम वे में आप जब मोनिका और तान्या मेरे पास आए तो उन्हें 5 नाम देंगे और उन 5 नामों में से जो भी बेस्ट हम उसमें से मिनिस्ट्री को बताएंगे, 5 नाम की रिक्वेस्ट डालेंगे, उसमें से हमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। फिर हम एक एग्रीमेंट फॉर्म करेंगे। एग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए फिर से वो स्टैम्प पेपर की रिक्वायरमेंट है, नोटरी होता है, लीगल चीजें हैं ये। आप लोग वो मत सोचिए, वो एक प्रोफेशनल का काम होता है, वो बहुत इजीली हो जाता है। हम एग्रीमेंट फॉर्म करेंगे, सारे पेपर को साइन कराएंगे, हम स्कैन कराएंगे अपने ऑफिस में और मिनिस्ट्री को भेज देंगे। एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भेज देंगे और आपकी एलएलपी तैयार। बस इतना सा काम है, आपको पैन, आधार और एक फोटो और एक बिजली का बिल। बिजली का बिल क्यों? क्योंकि एड्रेस भी तो दोगे आप लोग, हमें एड्रेस भी तो बताना पड़ेगा कि हमारी जो एलएलपी फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, यूपी में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कहाँ फॉर्म हो रही है, उसका पर्टिकुलर घर का, ऑफिस का एक एड्रेस आपको देना होगा बिजली का बिल के साथ। अब वो बिजली का बिल आपका भी हो सकता है और आपके किसी फादर का, मदर का, दादा का, दोस्त का भी हो सकता है। ये तो थी हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और उसी की बड़ी बहन कह लो, या बड़ी बहन ही कहेंगे क्योंकि वो पहले आ चुका था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, तो वो पहले आ चुका है। अब कंपनी बनाने में क्या है सर? कंपनी बनाने में भी बिल्कुल सेम चीज है, 2 या 2 से ज्यादा। सिंपल, फिर से मैं बोल रहा हूं, मिनिमम 2, एलएलपी में भी, पार्टनरशिप एक्ट में भी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी 2 तो चाहिए ही चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मैक्सिमम शेयर होल्डर है वो 200 हो सकते हैं, मींस 200 लोगों तक आप फॉर्म कर सकते हो। 2 से 200 तक आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फॉर्म कर सकते हो। अब फायदे क्या है कंपनीज में या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में? बहुत सारे फायदे हैं कंपनीज के। अब जैसे आप पढ़ते होंगे कि लक्ष्मी मित्तल जी ने Sir, sorry to interrupt. Can you see the screen presentation? Yes sir. Where need to So find next. Yes. हम पहले आ जाते हैं, इससे पहले वाला और पहले. Yes. नहीं सर, बस इसके बाद वाला। चलो सर, इससे पहले वाला कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। Yes. इससे पहले yes बस। Yes. अब मैं नेक्स्ट बोलूंगा तब आप शेयर कर देना सर। Sure. हाँ जी, हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीपीटी के थ्रू। फॉर्मेशन क्या है? स्टेप 1, डिसाइडिंग दी पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फॉर फॉर्मिंग। भाई मोनिका, तान्या तो तैयार है इनको बनाने के लिए, तो डिसाइडिंग दी पार्टनर्स हमारे डिसाइड हो गए। स्टेप 2 है ऑब्टेनिंग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्यों? क्योंकि माहौल चेंज हो चुका है। कोविड-19 तो खैर अभी आया है, उससे पहले ही लगभग सभी चीजें जो हम मैनुअली साइन करते थे, हालांकि अभी भी मैनुअली साइन होते हैं, लेकिन अब वो स्कैन्ड फॉर्म में जाते हैं विद आ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत इजी हो जाता है काम करना, आपको बार बार हमारे ऑफिस, मिनिस्ट्री के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बार आपके डिजिटल सिग्नेचर बन गए, 2 साल के लिए बन जाते हैं और फिर वो रिन्यू कराने पड़ते हैं। एक बार आपने अपना पैन आधार दिया, फिर टाटा कंसल्टेंसी है और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये
डिजिटल सिग्नेचर्स को बनाती है। स्टेप 3 है जो मैंने आपको बताया था, चेकिंग द नेम अवेलेबिलिटी, नामकरण करना है। एमटी एग्रो फूड्स एलएलपी, whatever the name the designated partner give to the advisor कि सर मैं तो ये 5 नाम रखना चाहती हूँ, उसमें से कोई एक बढ़िया सा नाम आप देख लीजिएगा। स्टेप 4 है ड्राफ्टिंग। एलएलपी एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था, एग्रीमेंट एक फॉर्म होगा स्टैम्प पेपर पे, वो हमारा काम होता है, लीगल एडवाइजर का काम होता है। एक बढ़िया सा उसमें कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, वो आप आराम से पढ़िएगा जरूर, और उनको साइन भी करना होता है, नोटरी के लिए साइन करना होता है, वो हम फाइल कर देते हैं। स्टेप 5 है फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। आपको हमने बताया था कि हमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को हमें एक फॉर्म के थ्रू फाइल करना होता है। और स्टेप 6 सिंपल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मिनिस्ट्री आपको एक प्रदान कर देती है सर्टिफिकेट कि यस यू आर फॉर्म, आपकी एलएलपी फॉर्म हो चुकी है, ये आपका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आ गए हम। ये हमारा 4th कैटेगरी ऑफ एंटिटी है। हमने क्या पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, सिंगल वाला, पार्टनरशिप पढ़ा, 2 और 2 से ज्यादा लोगों का, लेकिन वो मिनिस्ट्री से कवर नहीं था, वो सिंपल पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रजिस्टर्ड होगा। उसमें लायबिलिटी हमारी अनलिमिटेड थी। हम हमारे पर्सनल जमीन जायदाद भी बैंक को या जिनसे हमने लोन लिया है उनको हमें देना पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटीज में भी 2 या 2 से अधिक था, लेकिन वहां पे हमारी लायबिलिटी लिमिटेड थी। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मिनिस्ट्री से गवर्न होती हैं, और हमारे को काम करने में बहुत सारी सहूलियत है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में विश्वास कम होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सपोज आपको किसी एंजल फंडिंग से एंजल फंड मिल रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट मिल रहा है, तो एलएलपी में लाने का, पैसा लाने का बहुत अच्छा जरिया है एलएलपीज में। अब आ जाते हैं हम 4th कैटेगरी ऑफ एंटिटीज में, जो कि है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच गिव्स यू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी कैसे? जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, इंफोसिस, विप्रो, आपको एक एंटिटी मिल जाती है, आपको एक नाम मिल जाता है, फेम मिल जाता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है? प्राइवेट कंपनी आर दोज कंपनीज वेयर ऑल द शेयर्स ऑफ कंपनीज आर हेल्ड प्राइवेटली। मींस कोई भी गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, एबीसीडी में मिलके एक कंपनी बनानी है और एबीसीडी में ही बैठना है। It limits the owner's liability to the extent of their shareholdings. जैसे एक कंपनी बनाई अभी किसने? मोनिका ने और तानिया ने बनाई थी। अब मोनिका के 60% है और तानिया के 40% है शेयर्स, तो 60% तक ही है मोनिका की लायबिलिटी, उसके ऊपर तानिया की बट जा गई। उधर केस में कुछ नहीं पता, पार्टनरशिप में कुछ नहीं पता। And the limit the number of shareholders to 200, 200 तक, 2 से 200 तक जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मेरिट्स। फाइनेंशियल पावर। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो रेज कर सकती हैं अपनी मनी को क्विकली बाय इशूइंग शेयर्स। एक्चुअली क्या है, ये आप थोड़ा सा भी तो हमें समय का घंटा भर है, हमने कई महीने लगाए हैं कंपनीज एक्ट को पढ़ने में और आज तक पढ़ रहे हैं। इतनी इजी नहीं है कि आपको मैं 45 मिनट में पूरा कंपनीज एक्ट रटवा दूं। मैं तो केवल आपको ये बता रहा हूं कि आपको जब भी स्टार्टअप फॉर्म करना होगा तो आपको किसी नेचर में फॉर्म करना होगा। उसमें से एक नेचर है कंपनीज एक्ट का और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो आप आराम से इस स्लाइड को आप आराम से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ सकता है। फाइनेंशियल पावर क्या है कि कंपनी कैन रेज मनी क्विकली बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ स्टॉक। शेयर्स होते हैं कंपनी के, जैसे रिलायंस के आपने 10 शेयर खरीद लिए, ये तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बन जाती है जहां पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। यहाँ मैं अभी प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाएंगे चीजों को।
जैसे कि आपने कभी सुना होगा बातों बातों में, मैंने शेयर रिलायंस के 10 शेयर खरीद रखे हैं, टाटा पावर के मैंने 100 शेयर खरीद रखे हैं, टाटा मोटर्स के मैंने 1000 शेयर खरीद रखे हैं। तो ये एक शेयर्स का कंपनीज में चलता है। अभी तक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई भी इक्विटी का कोई भी लेना देना नहीं था, यहाँ पे कंपनीज में इक्विटी इन्वॉल्व हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, बिकॉज इट इज क्लोजली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर मोर विलिंग टू लैंड financial institutions, they are more eager, more willing to lend more capital, more money, because properly governed होती है। एक एक चीज, एक एक डॉक्यूमेंट्स, एक एक डिसीजंस हमें मिनिस्ट्री को बताना होता है, सारी बोर्ड मीटिंग्स का ब्यौरा हमें मिनिस्ट्री को बताना होता है, हर चीज गवर्न होती है बहुत। जैसे कि आप मान लो कि घर में, पुराने घरों में कहते थे हाथी बांधना बहुत महंगा हो गया है, ऐसी सेम कंपनी को फॉर्म करना या कंपनी को चलाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी तक जो हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, सेम लिमिटेड लायबिलिटी होती है जो कि हमारी लायबिलिटीज में होती है, ये कॉन्सेप्ट सीधे उठ के एलएलपी में चला दिया है यहाँ से। अनलिमिटेड लाइफ, नाउ एम आई ऑडिबल? प्रिया, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके प्रिया, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन देने में, पैसा देने में इच्छुक होते हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से गवर्न होती है, वहां से बनती है, उसके जो कागजात होते हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो बहुत पुख्ता होते हैं, कोई भी इसमें धोखाधड़ी कम से कम हो पाती है। लिमिटेड लायबिलिटी, सेम जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है ये कि आपकी जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइफ, भाई देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में सपोज उसकी डेथ हो गई, खत्म काम। पार्टनरशिप में एनी ऑफ द मेंबर वो मिसहैपनिंग हो जाती है, वहां काम हो जाता है खराब। एलएलपी में भी दिक्कत है, बट कंपनी देखो, रिलायंस, टाटा, रतन टाटा जी आ गए, प्रलॉन्जी जी आ गए, फिर से हट गए, फिर से वो, तो ये तो कंपनीज में ऊपर नीचे चलता ही रहता है। इसमें कोई भी, आप कंपनी में एक बार फॉर्म हो गई तो वो तो जब तक आप वाइंड अप में नहीं डालोगे तब तक वो वाइंड ही नहीं होगी। या तो आप डायरेक्टर्स को रिजाइन कर दें तो अलग बात है, आप कुछ गलत काम कर दें वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जब तक कंपनी का कोई लाइफ नहीं, कंपनी की कोई भी लाइफ नहीं होती। आज आप चला रहे हो, कल मैं भी चला सकता हूं, परसों कोई, आज मोनिका तान्या ने बनाई, कल को सचिंदर जी आ गए, नेक्स्ट राहुल भी आ गए, ये भी हो सकता है। अब मेरिट्स वही चल रही है, इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप, जैसे मैंने अभी बताया ना एग्जांपल में, ये आज मोनिका तान्या है, कल को मैं हूं, तो इजी है वो। बिजनेसेस कैन हायर एक्सपर्ट्स टू प्रोफेशनली मैनेज द ईच एस्पेक्ट। हम जो कंपनीज में आपने देखा होगा कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अब देखो ना कितने कई सौ लोगों को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वहां फ्लिपकार्ट में काम करने के लिए, तो वो पर्टिकुलरली सेल्स में 100 लोग हैं, परचेज में 10 लोग हैं, मार्केटिंग में 1000 लोग पढ़ा रखे, तो कंपनी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्लाइड। डीमेरिट्स, डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग एंड ऑपरेटिंग। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग में कि कंपनी थोड़ा सा बड़ा एक एटमॉस्फेयर हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, तो हमारे को ऑपरेट करने में थोड़ी सी कठिनाई है। कंप्लायंस फॉर्मेलिटीज, वही मैंने आपको बता रहा हूँ बार बार कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम भी आपको बार बार बोलेंगे, देखो आप पढ़ोगे, all companies are required to hold board meetings, general meetings, gets the accounts audited, maintain a statutory register, file annual return with the Minister of Corporate Affairs। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इनका मैंने आपको बता दिया था, जो वाइंडिंग प्रोसेस है वो भी इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रोसेस है। कंपनी एक बार खुल गई तो उसकी अनलिमिटेड लाइफ है, और जब तक वाइंड अप नहीं होगा तब तक वो हमारी चलती रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। फॉर्मेशन प्रोसेस सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें अफरा तफरी सी बात नहीं है, सिंपल वही देखिए आप, रिपीटिशन है एलएलपी वाला। अप्लाई फॉर डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी मींस डिजिटल सिग्नेचर फॉर इंडिविजुअल सब्सक्राइबर। कंपनी का नहीं बनेगा, मोनिका तान्या का बनेगा। चेक नेम अवेलेबिलिटी, सेम नामकरण, रिलायंस, टाटा, इंफोसिस। तो
नाम आपको देना है, आपको सोचना है किससे लिंक है, एग्रो से है, फूड से है, केमिकल से है, मैकेनिकल काम कर रहे हो आप, इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें। फिर फाइलिंग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये बहुत एक प्रोसेस है, प्रोफेशनल जानता है कि एक प्रोसेस होता है, INC 32 फॉर्म होता है along with MOA. MOA means मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड EAOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होते हैं? कंपनीज के अभी हमने एलएलपी में पढ़ा था ना, एग्रीमेंट वाला कोड पार्ट, एग्रीमेंट बनता है, इसमें मेमोरेंडम बनता है। आप इजीली गूगल करके देख सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको समझ में आ जाएगा कि उस मेमोरेंडम में या आर्टिकल में उसके ऑब्जेक्ट लिखे रहते हैं कि ये कंपनी क्या क्या काम करेगी, ये कंपनी किस तरह से चलेगी, इस कंपनी के डायरेक्टर्स क्या क्या काम करेंगे, इस कंपनी के जो मैनेजमेंट होगा वो क्या क्या काम करेगा, वो सारा आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में छपता है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, फ्लिपकार्ट है, लाइफस्टाइल है, वन ऑफ द एग्जांपल्स, देयर आर मेनी एक्स नंबर्स एन नंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया। कंक्लूजन ये है, हमारे पे अभी भी 10 मिनट शायद हैं, राहुल जी अगर हमें अलाउ करेंगे तो मैं प्रॉब्लम ले लूंगा, मुझे कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं है। कंक्लूजन ये है कि फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इट इज इजियर टू रेज फंडिंग and offer employee stock options to attract talent to the company. At the same time, if the entrepreneur has no plan to raise funding for a couple of years ahead, then LLP is suitable, then private company. Suppose इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग hereby कि अगर आपका 5 साल तक आपको स्वयं काम करना है, आपको लगता है फ्यूचर में आपको स्वयं की कैपिटल लगा के काम करना है, तो इट इज इजी, इट इज बेटर टू डू योर बिजनेस इन LLP. But in coming years of 2 or 3 years, if you want angel funding, if you want venture capitalists, then it is better to form a private limited. Another major difference is that the entrepreneur saves time on compliance matters. मैंने आपको बताया था कि compliances बहुत ज्यादा है then LLP. थर्ड हमारा कंक्लूजन ये है कि if an entrepreneur is starting a new firm with a disruptive idea which has not been validated, it is recommended to consider the above mentioned differences. However, the business idea has been tested and displayed for success stories. Then आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ के देखिए, आप समझ के देखिए कि एक प्राइवेट कंपनी 1 लाख से शुरू होके वो 100 लाख की बन जाती है। तो ये इट्स अप टू यू, आपको किस फॉर्म ऑफ एंटिटी में जाना है। मैंने आपको चारों बता दी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हमारे जो सर्विसेज हैं एज ए एक क्वेश्चन आया है, वेयर डू अनिल अंबानी फर्म फिट इन? तो मैडम वही मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड इनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज थी, रिलायंस बड़े उन्होंने रिलायंस पावर इनकी थी, आरकॉम इन्होंने बनाई थी, लेकिन डेट बहुत थे इनके बैंकों के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, किसी कारणवश वो चीजें मैनेज नहीं कर पाए और वो लिक्विडेशंस में है इनकी सारी कंपनीज। सर्विसेज जैसे एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर हम दिला देंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा देंगे, एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, जीएसटी के साथ, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग जब फंड रेज करने के जाते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये सभी चीजें हैं जो एक नॉर्मल लीगल फर्म में, एक सीए फर्म में, एक इनकम टैक्स असिस्ट फर्म में आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं, जो कि हम ये सर्विसेज आपको बड़े सत्येंद्र जी को पता है कि बहुत नॉमिनल उसमें हम लोग ये काम करते हैं, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑफ इनक्यूबेटर्स इन गाजियाबाद। तो मुझे पता है स्टार्टअप्स को खोलने में, बंद करने में, चलाने में कितनी प्रॉब्लम्स, परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वैसे तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जो भी इसका पीपीटी था, और राहुल जी अब जैसे आप इसको आगे चलाना चाहते हैं। Sure, sir. If any participant have any question, can ask you. We can have a short 5-minute session for Q&A. There are already questions. yes, मैं पढ़ लेता हूँ। Where do Anil Ambani's firm fit in? मैंने आपको बता दिया। ज्योति का क्वेश्चन है, sir, is this the concept of limited corporation is also valid? Yes, it is in India. For India के लिए बना है मैडम जी।
अगला क्वेश्चन है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नोट्स, आईपीओस एटसेट्रा फंड रेजिंग। यस, बिल्कुल बिल्कुल बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है ये। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, लोन और आईपीओ ये फंड रेजिंग के इनिशिएटिव्स हैं, बहुत बड़े इनिशिएटिव हैं मैडम। Hello. आप चैट में लिख सकते हैं, चैट में आप क्वेश्चन Yeah, एज मच। can I go live if that's possible? यस सर। Yeah, I have some questions. It's painful to type all these questions, but these registrations are state-wise, or those are goes to the central department, state to the central government? A registration. Yeah. Registration is from central government. Okay, so it doesn't matter whether you are in UP or any other state. You can just register with this Ministry of Corporate Affairs, and you can do your business in any of the state and any of the Yes sir. Sir, because registration process जो होता है ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक होता है। जहाँ पे जीएसटी इन्वॉल्व हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स का हो जाता है। आपको पता ही होगा कि जीएसटी जो है वो स्टेट का है, और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, क्योंकि इटसेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, वो सेंट्रली बेस्ड है, उसमें कोई स्टेट का लेना देना नहीं। Okay, and अभी जो process जो है, there is nothing online. Looks to it sounds to me from your presentation, we still need to go through you, and there is a lot of paperwork is involved. So there is nothing online right now. Yes sir, no, because क्या है सर, ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम गलत उठा लेते हैं, ड्रैग गलत कर लेते हैं, या गलत डॉक्यूमेंट को फाइल कर देते हैं। That's a separate issue. That's a separate issue. I don't think that's the right reason. So you can. It's not there. If you are मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी आपको, अगर आप खुद स्वयं कोई भी डॉक्यूमेंट बना के, एग्रीमेंट बना के खुद, सर देखिए ना, डॉक्टर की बात है, बुखार हो जाता है, हमें पैरासिटामोल लेना होता है, सब जानते हैं, दर्द हो जाता है तो हमें कोई ब्रोफिन लेना होता है, बट कहीं कहीं सॉल्ट का चेंज आ जाता है, तो एक एक्सपर्टीज नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। So if I heard you rightly, online option is still there, but it's recommended to go through the experts like you, so that you make less errors. That's what I'm saying. But going online is still possible, in theory at least. In theory, you can still go and apply online, correct? Yes, sir. Of course. Okay. No doubt. How much time it should take for registration from the time of submitting document and to the date of approval? Sir, it's up to you. जब डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, सब टाइम मैं नहीं लेता, टाइम मिनिस्ट्री लेती है। नहीं, वही बता रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट आएंगे, मैं तो नेक्स्ट डे, सेम डे और नेक्स्ट डे मिनिस्ट्री को फाइल कर दूंगा। जो भी समय लेता है, जो भी टाइम लेता है, वो मिनिस्ट्री लेता है। No, that's exactly I'm asking. How much time ministry takes? Sir, approx 10 to 15 days. 10 to 15 days. Okay, that's not big deal. Sir, question आए हैं दो. Approx cost to register LLP company in Delhi will go along with the service charges. और मैडम मैं बता दूं आपको, LLP रजिस्ट्रेशन के करीब 8,000 रुपया है, और प्राइवेट कंपनीज के करीब 12,000 रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if we start with the sole proprietorship, after some time we need to switch it to OPC, then what is the procedure and expenses? सर सांची अरोड़ा का क्वेश्चन है, बट ये सांची ये बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है, सोल प्रोप्राइटरशिप को आप ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्विचिंग इज नॉट अलाउड। सोल प्रोप्राइटरशिप अलग है और ओपीसी बिल्कुल अलग है, स्विचिंग नहीं है। But LLP can be switched to the private limited, correct? Yes. In future it can. Okay. और LLP को share में क्या बोलते हैं? It is not like equity, correct? What do you call it? No. There is no equity in LLP. It is only the capital. Only capital. Equity है ही नहीं वहाँ पे. Share of capital. Okay. It's a share of capital then. It's a capital. और उसमें लिमिट है क्या? कितने बंदे हो सकते हैं इकट्ठा, मतलब कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? सर दो से अनगिनत, infinite. LLP में there is no limit like 200 like in. No limit. Okay, got you. Thank you, sir. Thank you. I appreciate that. एक क्वेश्चन है सांची का, can we switch OPC to private limited company? OPC itself private company. सांची OPC जो है वो itself private limited company का ही concept है। Any question? राहुल जी आप टेक अप करें, है ना? Yes, sir. Thank you, sir. Even Dr. Arora, VK Arora, CEO for IGTTU Incubation Center, has also joined us while Q&A, and he didn't. I welcome Arora ji this workshop. बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे participants हैं, शायद मैंने देखा female participants बहुत सारी. Yeah, there are. Thank you, sir. This workshop is brainchild of sir only. Sir has initiated the process and everything. That's great. So if you have any question that I will be taking up on the same kind of concept. So I thank you, CA sir.